Hello dear students, welcome to our new topic, that is symbol of element. Okay, students, elements are represented by their symbols. Okay, Dalton was the scientist. Student. He used circular symbol to represent the various atoms. Okay, for example, oxygen, hydrogen, copper, carbon, and he differentiated the atoms of various elements by putting different marking inside the circle. But it was, children, not possible to learn all the symbol of the element on that time. And now J.J. Berzelius suggested that, okay, now children, J.J. Berzelius, okay, after Dalton, he suggested that the symbol of element be made from one or two letters of the name of the element. It means if there is single atom, then it should be capital, children. For example, nitrogen, N, carbon, C. It should be capital. Phosphorus, P. These symbols have come from their Latin or Greek word, children. Clear? And if there are two or more atoms, okay, so in that case, first element should be in capital and second will be in small letter. For example, cobalt, okay, then Cu, the first C will be in capital and second oxygen will be in small. Clear, children? Chromium, symbol is Cr. First C will be in capital and second R will be in small. Aluminium, the first A should be in capital and second L will be in small. Okay. Now children, see their significance. Symbol represents the name of element. It represents one atom of element and it also represents the definite mass of element. For example, nitrogen. Example, if N is there, if symbol is N, it represents nitrogen is given there. It represents one atom of nitrogen is there, and third is this nitrogen represents 14 average atomic mass, means the atomic mass of this nitrogen is 14, children. Okay, now we have completed the topic symbol of element, and now we are going to study the relative atomic mass. Now children, atomic mass. The mass which is equal to 1/12 of the mass of a carbon 12 atom is called atomic mass unit. बेटा, एटम जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि उनका एग्जैक्ट मास कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं।
अब एक सिंगल डॉट लें, ये जो सिंगल डॉट है इसके अंदर मिलियन एटम्स होंगे। अब बताओ इतने छोटे पार्टिकल्स का मास कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम कभी भी किसी का भी मास हम एग्जैक्ट नहीं निकालते, चाहे वो अपना खुद का मास हो। जैसे अगर हम मार्केट जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं हमको 1 किलो चीनी चाहिए, 1 kg शुगर, वो करता क्या है, ऑब्वियसली वो करता क्या है, 1 kg शुगर एक जगह रखता है और एक जगह 1 kg का बाट रखता है आयरन का, और दोनों को कंपेयर करता है। जब दोनों इक्विलिब्रियम आ जाते हैं, जब दोनों बैलेंस में आ जाते हैं, तो वो आपको 1 kg शुगर दे देता है। मतलब वो क्या कर रहा है, एक कंपैरिजन कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट से आपके शुगर को कंपैरिजन कर रहा है और उस कंपैरिजन के बेस पे वो आपको 1 किलो चीनी दे दे रहा है। समझ गए? ऐसे हम कोई भी अगर हम मास कैलकुलेट करते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार जो होते हैं हमेशा एक कंपेयर करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से, और कंपेयर करने के बाद वो हमको वो चीज दे देते हैं। तो बेटा एटॉमिक मास जो होती है किसी भी एलिमेंट की, वो एग्जैक्ट कैलकुलेट पॉसिबल नहीं है। तो अब यहां तो 1 kg हो गया, 2 kg ले लिया, हम उन लोग के पास होता है, दुकानदार के पास। अब ये क्वेश्चन साइंटिस्ट के पास आ गया कि हम किस एलिमेंट का एक मास लें जिससे कंपेयर करके हम किसी और एलिमेंट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ गए? तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा मास हम लेंगे, एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जो हर जगह पाया जाता हो, जिसकी एबंडेंस ज्यादा हो। तो उस समय एक कार्बन 12 पार्ट चल रहा था। बेटा कार्बन के 3 पार्ट होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये नहीं ज्यादा पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ये और कम पाया जाता है, ये ज्यादा पाया जाता है। तो उन्होंने कार्बन 12 लिया ये एलिमेंट, और कार्बन 12 के 1/12 पार्ट जो होता है, मतलब कार्बन 12 एलिमेंट के 12वें हिस्से के मास को सारे एलिमेंट से कंपेयर करना स्टार्ट किया। जैसे अगर कार्बन का 12वां हिस्सा बनाए, वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 to 12। मान लो बेटा कार्बन 12 का 12वां हिस्सा बना दिए। ओके, अब देखो कैसे उसने कंपेयर किया। मान लो ये दो तरफ हम लोग कंपेयर करने के लिए रख दिए, एक तरफ हाइड्रोजन रख दिए और दूसरी तरफ कार्बन का पहला पार्ट रखेंगे। मान लो ये पहला पार्ट रखते हैं, फर्स्ट पार्ट। अगर फर्स्ट पार्ट रखने पर अगर वो बैलेंस कर जाता है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का जो मास होगा वो कितना होगा, 1 होगा। क्लियर चिल्ड्रेन? अब मान लो हीलियम रखते हैं। ओके, चलो हीलियम रखते हैं। अब सबसे पहले उसने 1 रखा, 1 पार्ट। तो देखा अभी भी जो हीलियम है वो ज्यादा है, तो ज्यादा इस तरीके से है, और ये जो कार्बन का पहला पार्ट है वो ऊपर है, मतलब अभी कम वेट है। फिर उसने ही दूसरा पार्ट रख दिया, ये वाला पार्ट रख दिया। फिर उसने देखा कि इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे आ गया, ठीक है। फिर उसने देखा अभी भी बैलेंस नहीं है, फिर उसने तीसरा पार्ट रख दिया। फिर
थोड़ा सा और लगभग बराबर नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा था। तो उसने क्या किया, फिर उसने चौथा पार्ट रख दिया। अब जैसे ही चौथा पार्ट उसने रखा तो देखा हीलियम और इसका जो बैलेंस था, मतलब जो इक्विलिब्रियम था वो बैलेंस में आ गया, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, दोनों बराबर हो गए। तो इस तरीके से हीलियम का जो एटॉमिक मास निकला वो 4 निकला, और U, इसका सिंबल है U। तो बेटा किसी भी एटम की, किसी भी सब्सटेंस की जो एटॉमिक मास होती है, किसी भी सब्सटेंस की, एलिमेंट की जो एटॉमिक मास होती है, हम लोग कभी भी उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम केवल कंपेयर करके उसको रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मीन्स होता है कंपैरिजन, मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होगा वो कंपेयर करके निकलेगा। और किससे कंपेयर करेंगे? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 के 12वें हिस्से से हम कंपेयर करेंगे। अगर वो बैलेंस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, तो वही उस एलिमेंट की एटॉमिक मास होगी। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो डेफिनेशन हमारा बहुत सिंपल है। ऐसा मास जो 1/12 of the mass of carbon 12 atom is called atomic mass unit. Clear children? तो इस तरीके से सारे एलिमेंट की एटॉमिक मास कंपेयर करके निकाली गई। ओके चिल्ड्रन?